everyone. Welcome to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class we will start with question number 2nd, right? Because in previous classes we have completed question number 1st of exercise 4.4 chapter number 4, that is simple equations. This is our third part of exercise 4.4, right? So this video is the third part. Before this video there are two videos in which I have completed question number 1st, right? So this is question number 2nd. Question number 2nd is solve the following, means you have to solve these things, right? A part is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? मीन्स टीचर है क्लास में, वो कह रही है कि हाईएस्ट स्कोर जो एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं उनकी क्लास में वो 2 टाइम्स हैं और उसमें +7 और है, राइट? मतलब जो भी लोएस्ट स्कोर है उसको आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए और उसका 2 टाइम्स +7 करेंगे तो वही हाईएस्ट स्कोर है और दिस हाईएस्ट स्कोर इज 87. तो मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगी 2 टाइम्स L + 7 इट इज इक्वल्स टू 87. What is the lowest score? You have to find the lowest score. So for that first we will set up an equation and then we will solve this equation to find the value of the lowest score. Clear? So let us do this. Question number 2nd, A part. Let the lowest score be L. Let the lowest score be L. Now here you can take any variable you want. You can take x also, y, z or whatever variable you want. Clear? Since it is lowest score, therefore I have assumed it as L. Clear? Now let the lowest score be L. Lowest score को L मान लिया, then highest score क्या होगा? हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू, तो हाईएस्ट स्कोर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना? 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस +7. सो 2 टाइम्स दिस लोएस्ट स्कोर एंड +7 मोर, राइट? ना ऑल्सो हाईएस्ट स्कोर इज 87. सो हियर यू कैन राइट बट द हाईएस्ट स्कोर इज 87. तो हाईएस्ट स्कोर की जगह हम ये भी हमारा हाईएस्ट स्कोर है और ये भी, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? इक्वेट, क्योंकि बोथ आर द हाईएस्ट स्कोर. LHS सेम है तो हम वी कैन इक्वेट द RHS को हम इक्वल रख के और ऐसा लिख सकते हैं, देन करके लिख दीजिएगा या देयरफॉर का साइन बना दो. देयरफॉर 2L + 7 इट इज इक्वल्स टू 87. क्लियर? अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट स्कोर. सो फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसपोज दिस 7 to RHS. So it is 2L is equals to 87 minus 7. When this +7 is transposed to RHS, it becomes -7. Clear? Then 2L is equals to 87 minus 7 is 80. Now in order to find the value of L, we also need to transpose this 2 to RHS. This 2 is in multiplication with this L. When this 2 is transposed to RHS, it becomes in division. So this is L is equals to 80 divided by 2. Now 80 divided by 2 is 40 because 2 4s are 8 and 0 as it is. So the lowest score is L equals to 40. You can write it here as L equals to 40, thus the lowest score is 40, right? You also need to write the answer, thus the lowest score is 40. This is your A part of question number 2nd. Now let's move on to B part. B part is in an isosceles triangle the base angles are equal. Means एक isosceles triangle है उसमें base angles equal हैं. The vertex angle is 40 degree. Vertex angle 40 degree है. What are the base angles of the triangle? तो triangle के base angles क्या होंगे?
अच्छा, ऑल्सो इस क्वेश्चन में एक ये चीज़ है, प्रॉपर्टी जो आपको खुद से पता होनी चाहिए कि हमें पता है कि एक जो ट्रायंगल है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं, दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। यानी कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास और उसके दो बेस एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स हम उनको x अज्यूम कर सकते हैं, और वर्टेक्स एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 40 डिग्री, तो ऑल द 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, राइट। सो वी कैन राइट दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x plus 40 इक्वल्स टू 180 एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, दैट इज बेस एंगल। So let's solve this B part also. This is B part. Let the base angle be x. x भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, clear? Then बेस एंगल x ले लिया तो दूसरा बेस एंगल भी x ही होगा, क्योंकि बोथ द बेस एंगल्स आर इक्वल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब वर्टेक्स एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वर्टेक्स एंगल कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए वर्टेक्स एंगल इक्वल्स टू 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल ऑलरेडी दे रखा है 40 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखेंगे आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी की जगह आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैंने यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा। एंगल सम प्रॉपर्टी भी उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस x, ये दोनों बेस एंगल्स, और वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री, इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.2 में भी कर चुके हैं, राइट ना। तो एक्सरसाइज 4.2 में भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, x प्लस x इज 2x प्लस 40 डिग्री, इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। Now when this 40 transposed to LHS, it becomes minus 40. So 2x is equals to 180 degrees minus 40 degrees. So 180 minus 40 is 140 and it is 2x. You have to find the value of x. So in order to find the value of x, transpose this 2 to RHS, it becomes in division. So this x is equals to 140 divided by 2, 2 sevens are 14 and 0 as it is, means x की वैल्यू क्या आ गई, this x is equals to 70 and then you have to write the answer. Thus the base angle is 70 degrees, क्योंकि एंगल की यूनिट होती है डिग्री, एंड यहाँ implies लगा देना, राइट। ये है आपका B पार्ट, दिस इज B पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी implies। ओके, सो दिस इज A एंड B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है, मैं ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी चीज़ दे रखी है उसको आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट स्कोर दे रखा था, तो लोएस्ट स्कोर के टर्म्स में हाईएस्ट स्कोर है, इसलिए हमें लोएस्ट स्कोर को पहले कुछ अज्यूम करना होगा। या फिर आप ब्रीफली समझना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है उस चीज़ को आप अज्यूम कर लीजिए एज L, X, Y, A, B, C और वॉट एवर यू वॉन्ट। तो पहले अज्यूम कर लीजिए, लोएस्ट स्कोर फाइंड करना था, मैंने L अज्यूम कर लिया। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 टाइम्स L मीन्स ट्वाइस प्लस 7, तो 2L प्लस 7, और ऑल्सो क्वेश्चन में हाईएस्ट स्कोर 87 दे रखा है, यानी ये दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके यहाँ लिख सकती हूँ। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा, और 10 करके आंसर लिखना है। 10 द लोएस्ट स्कोर इज 40। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी बेस एंगल आपको अज्यूम करना है, क्योंकि वही हमको फाइंड करना है, इसलिए हमने उसी को अज्यूम किया। वर्टेक्स एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में 40
डिग्रीज दे रखा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के उनका सम 180 होगा। तो 3 एंगल्स, 2 बेस एंगल होते हैं, दोनों बेस एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों x होंगे, और एक वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो x + 40 इक्वल्स टू 180। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। दिस इज अवर A and B पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस C पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। C पार्ट आपको खुद से करना है। ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन एट योर होम एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके। सबमिट मी योर टुडेज होमवर्क बाय टुडे itself, right? Okay, so that's it. In next class we will continue with question number 3 of this exercise. After question number 3 this exercise is completed, right? So please submit me your homework daily and do the sums and practice it more and more, right? Practice these sums at your home, and if you find any doubt then please ask me. Thank you.